Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This video gonna help you out to prepare unit 4, that is data analysis, and in this video we are going to talk about most important topics and most frequently asked questions from exam point of view. So let's get started. As per my teaching experience from unit number 4, one of the most important topics is statistical modeling techniques, in which we will talk about supervised learning and unsupervised learning. So in our syllabus, we do have 3 models: regression model, a classification model, which comes under the category of supervised learning, and unsupervised learning की category में we do have only K-mean clustering. So ये 3 topics अगर आप prepare कर लेते हैं, these topics are on page number 130 till 132, तो 35% आप unit number 4 जो है वो prepare कर लेते हैं. अच्छा, यहाँ पे जो है मैं sequential wise actually यहाँ पे mention करूँगी different topics. जो सबसे पहले topic मेंशन करूँगी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप उनको सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे, सो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स और एनी टेस्ट यू गाइज विल बी प्रिपेयरिंग फॉर. तो यहाँ पे ये जो 3 मॉडल्स हैं, रिग्रेशन मॉडल, क्लासिफिकेशन मॉडल, अच्छा इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक दैट्स के मीन क्लस्टरिंग. आपकी बुक में, आपके सिलेबस में बहुत छोटा सा है, बहुत शॉर्ट सा है, उसको प्रिपेयर करते हुए हार्डली इट विल टेक वेरी लेस टाइम. तो अगर ये आप प्रिपेयर कर लेते हैं और पेपर में, एग्जाम में इन तीनों मॉडल्स में से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. ओके, मूविंग नेक्स्ट वी आर हैविंग सम प्रिंसिपल्स. सो वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इन विच विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन, द प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल, द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकिंग, द प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन. और अगर आप ये चारों प्रिंसिपल्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका 45% जो है वो चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो जाता है. मूविंग नेक्स्ट वी आर हैविंग अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन फ्लो, under which we will talk about develop hypothesis. We do have different steps. We will talk about the find variables, determine experimental design, calculate the needed size sample, random assignment and selection, carry out the experiment, data analysis, interpreting and drawing conclusion, and in the last we do have discuss and report. आप अगर ये प्रिपेयर कर लेते हैं टॉपिक, तो यहाँ तक आपकी 55% प्रेपरेशन कंप्लीट हो जाती है फ्रॉम यूनिट नंबर 4. यहाँ पे आपको ये चाहिए कि 5 मिनट्स का ब्रेक लें, 10 मिनट्स का ब्रेक लें. उसके बाद जो है आपका चूँकि हाफ चैप्टर प्रिपेयर हो चुका है, तो इसके आफ्टर अ लाइट ब्रेक आप जो है वो मूव करें टूवर्ड्स योर next topics and the preparation of unit 4. So moving next, we are having another and very important and very easy topic, that is what is correlation and causation. आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी बुक से, 60% आपका चैप्टर प्रिपेयर हो गया. Moving next, we are having few differences from unit 4, that is differences. Okay, differences में क्या क्या आ सकता है आपके एग्जाम में? The difference between correlation and causation, the difference between population and random sample, parameters and statistics, and what is the difference between data product and data analysis. यहाँ तक अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका 65% जो है वो चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है. Okay, moving next, we are having some data collection methods, in which we do have the category of primary data collection and secondary data collection. Under all these we do have different categories as well. So ये जो topics अगर आप prepare कर लेते हैं तो आपका 70% unit number 4 prepare हो जाता है. Okay, moving next, there are few other questions like for example, what steps are involved to analyze a data set. Another question is what is a data product and what it is used for and why. The other is what is data visualization, and also write its significance in data science and how Python helps in data visualization. तो ये मैंने different topics में से कुछ questions बना लिए थे. Moving next, there is another topic that is data visualization, in which we do use different Python libraries, in which the first one is Panda है, matplotlib है, then we will talk about the scatter plot, box plot, line chart, visualization से related line chart है, bar chart है, histogram है, and pie chart. किस तरह से ये draw करते हैं and किस तरह से ये data visualization को enhance करते हैं, किस तरह से उसको help out करते हैं data को visualize करने में. So you guys should prepare all this. यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो आपकी 80% जो है वो unit 4 prepare हो जाता है. Then we comes to the topic that is statistical modeling, in which we do study about the use cases and how to solve a data set
केस स्टडी। अच्छा, ये चैप्टर का स्टार्टिंग टॉपिक है। अब हम ये स्टार्टिंग टॉपिक जो है वो ये प्रिपेयर कर लेंगे। इट विल रेज आर प्रेपरेशन टू द नेक्स्ट पर्सन। रिमेनिंग टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहाँ तक जो आपकी प्रेपरेशन परसेंटेज है इट विल रीच टिल 88%। मूविंग नेक्स्ट वी डू हैव द यूनिट एक्सरसाइज आप प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसमें यूनिट एक्सरसाइज में आपके आ जाते हैं MCQs क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अगर ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका 90% यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप ये कहेंगे कि मैम ने तो सारे के सारे टॉपिक्स बता दिए। बेटा, जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है वो जो स्टार्टिंग में जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं आप जिस उन्हीं को प्रिपेयर कर लें, एंड देन एग्ज़ाम के लिए आप इट वुड बी द बेस्ट लक कि अगर उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू स्कोर गुड एंड टू स्कोर बेस्ट मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स आपको पूरे का पूरा सिलेबस कवर करना ज़रूरी होता है। सारे का सारा सिलेबस कवर करके जाएंगे, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, देन यू गाइज वुड बी कैपेबल इनफ टू स्कोर फुल मार्क्स और यू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ओके, एक दफ़ा प्रिपेयर करना ज़रूरी नहीं होता, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, अब तक पॉलिशिंग नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो अच्छी तरह से आप नहीं उसको आंसर कर पाएंगे। तो इसलिए फ़र्स्ट एक दफ़ा रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा रिवीजन करेंगे तो 93%, इसका मतलब है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। और 93% से फर्दर अपग्रेड करने के लिए परसेंटेज सेकेंड रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नॉट ऑन द सेम डे बट ये है कि ऑन सम अदर डिफरेंट डे। ओके, सेकेंड टाइम रिवीजन, देन थर्ड टाइम रिवीजन, द इंटायर चैप्टर, द इंटायर एक्सरसाइज थर्ड टाइम अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो 97% तक आप कह सकते हैं आप का चैप्टर कंप्लीट प्रिपेयर हो गया। अच्छा, अब रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। रिमेनिंग जो 3% है वो मैंने पॉलिशिंग के लिए रखी है। आप जितना ज़्यादा उसको पॉलिश करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा टॉपिक्स को मेमोराइज करना, एंड यू गाइज विल बी कैपेबल इनफ टू आंसर इन योर एग्जाम्स एंड स्कोर good marks or full marks in your exams. Okay, this is all about from today's lecture. I hope lecture was helpful for you guys. In case of any question, you guys may drop your words in the comment section, and in case of contact, you guys may contact me as well. So stay tuned for my next lectures. इंशाल्लाह मैं यहाँ पे अगैन बता दूँ कि बेटा यहाँ पे मेरा मकसद सिंपल आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना था कि आप लोगों ने चैप्टर को किस तरह से, क्योंकि ये नहीं होता कि आप सीक्वेंशियली स्टार्ट करते, आप सीक्वेंशियली भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और अगर आप लोगों ने प्रिपेयर करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं बिल्कुल आप लोगों को रिलाई नहीं करवाना चाह रही कि आप लोग बिल्कुल वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें, बाकी छोड़ दें, नहीं, बाकी भी करना है। एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू होके जाएं, सारे के सारे टॉपिक्स को देख के जाएं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, ताकि अगर किसी अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक में से भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको एग्ज़ाम में आंसर कर सकें। So good luck for your stand-up exams, for your class test, or you guys will be having your final exams. I don't know आप मेरी ये वीडियो किस टाइम देख रहे हैं। So जो भी आपका टेस्ट है, जो भी आपका एग्ज़ाम है, गुड लक, अच्छा प्रिपेयर करें और अच्छा परफॉर्म करें, so that you guys may score good in your exams. Stay tuned, we'll see you in the next lecture inshallah.